कल झारखंड के त्रिकुट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ झारखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ त्रिकुट ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੋਹਣਾਪਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੋ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇहद ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਪਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਹੈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਪਵੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਭਵਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਪਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਪ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਰੋਪਵੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਪਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਪਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਪਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖ रखाव करते हैं वो साढ़े नाल ने। तो सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है। मेंटेनेंस हम लोग रोपवे चालू होती है 7:30 को, 7:30 से हम लोग 8:30 तक हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। इट डिपेंड अपॉन द टाइम आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग को कुछ लगा कि हमें इसको हम लोग चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग उसका समय बढ़ सकता है। ये जरूरी नहीं कि 1 घंटा में ख़त्म करना है। इट डिपेंड अपॉन द वर्क, किस टाइप का काम हो रहा है हम लोग का, उस टाइप का मेंटेनेंस होता है। फिर बीच में हम लोग ट्रॉली का माने एवरी 2 आवर 3 आवर्स हम लोग माने आइडल रनिंग चेक करते हैं कि कहीं पर आवाज़ मिल रही है कि नहीं, किस टाइप का आवाज़ आ रही है, वो सब हम लोग चेकिंग करते हैं हम लोग। लेकिन जैसे क्योंकि आपको पता होगा कि कल झारखंड में क्या हुआ है, कैसा वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो मतलब जो रोप है ना, जिस थ्रू ये ट्रॉलीज आती हैं, तो इनकी कैपेसिटी भी होती होगी कि इतने से इतनी गिनती में जो रोप है वो उसका भार उठा सकती है। एक ट्रॉली में कितने लोग बैठ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है? नहीं, डिपेंड अपॉन अलग अलग साइज है, लेकिन हम लोग का यहाँ पर है, हम लोग का यहाँ पर चार कैपेसिटी है। ओनली 4 पर्सन आर अलाउड इन वन कैबिन। हम लोग 4 है। अगर छोटे बच्चे आ जा रहे हैं तो एक छोटे बच्चा एडजस्ट हो जाते हैं, उससे अधिक हम लोग नहीं बैठाते हम लोग।
तो जैसे आपने बताया कि हम पहले सबसे पहले चेक करते हैं हर एक चीज़ जो है कि कैसी चल रही है। तो मतलब जो नॉर्मली आपको होता है कि नहीं आज थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो ऐसे कौन सी सिचुएशन होती है कि आपको पता चल जाता है कि आज थोड़ा-सा गड़बड़ लग रही है, आज थोड़ा देरी से शुरू करेंगे चेकिंग करके? आज का बात नहीं है, हम लोग डेली हम लोग चेक करते हैं, हम लोग क्या क्या किस टाइप का साउंड आ रहे हैं, कौन सा इमरजेंसी हमको अभी चेंज करना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करके हम लोग चेंज, अगर दरकार पड़ा कि हम लोग को नहीं यार अभी चेंज करना है, तो हम लोग रोपवे का माने ऑपरेशन बंद करके उसी समय हम रिप्लेस कर देंगे। हम लोग विल नॉट वेट फॉर द कल के लिए वेट नहीं करेंगे कि कल को हम लोग करना है। अगर हम लोग देखेंगे हाँ ये जरूरी है चेंज करना, अभी कर देंगे। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਕੋ, ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫਲੋਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਟਰੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि किस तरीके नाल काम करती है। तो सर जैसे हम बीच में बैठ के आए हैं तो सेफ्टी को लेके क्या कुछ रहता है कि लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप पे भी ये टेंशन रहती होगी पूरा दिन कि हमने पूरा सेफ्टी का भी ध्यान रखना है लोगों के लिए। सेफ्टी के लिए मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या है यहाँ पे? सेफ्टी के लिए हम लोग जो मेनली हम लोग कैरेज का एक एक पार्ट चेक करते हैं, स्प्रिंग का टेंशन कितना वो देखते हैं हम लोग, और स्प्रिंग का टेंशन रोप का या हम लोग को बीच बीच में आप टावर पर देखे होंगे चक्के घूम रहे हैं, वो चक्के का देखते हैं, चक्के का कैसा वाइब्रेशन है कि क्या है वो देखते हैं। लॉकिंग हुआ है कि नहीं, तो कैबिन जब यात्री बैठते हैं तो कैबिन अच्छा से लॉक हुआ है कि नहीं, खुल ना जाए, वो सब देखते हैं हम लोग। क्योंकि जैसे अक्सर लोग हैं ना घूमने जाते हैं तो कोई अगर पूल होता है या पानी वाली जगह में जाते हैं तो वहाँ पे उनको सेफ्टी जैकेट्स वगैरह मिलती हैं। तो जैसे कैबिन है, अगर कैबिन में बैठते हैं तो क्या लोगों के लिए आपको लगता है कि कुछ ऐसा सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के लिए दरकार नहीं है वैसा, लोगों के लिए हम लोग को वैसा दरकार नहीं कि सेफ्टी जैकेट या ये सब लगे, पर हम लोग थॉरो चेकअप कर लेते हैं। हम लोग 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे थॉरो चेकअप करने का, देन हम लोग ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं, पैसेंजर को अलाउ करते हैं। उससे पहले पैसेंजर अलाउ नहीं है, हम लोग 1 घंटा चेक करते पैसेंजर अलाउ नहीं है। हम लोग अपना पूरा थॉरो चेकअप करेंगे, उसके बाद हम लोग जब तक वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि रोपवे इज मतलब सही है तब हम नहीं चलाएंगे, बिकॉज वी आर रनिंग द पैसेंजर रोपवे, दिस नॉट ए मेटेरियल रोपवे। हम लोग किसी माने इंसान का लेके चलते हैं हम लोग, जब तक हम लोग अपने आप में संतुष्ट ना हो कि एवरीथिंग ओके, देन ओनली विल स्टार्ट द रोपवे। उसके लिए 1 घंटा की जगह 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे, दैट्स नॉट मैटर। पूरी सेटिस्फेक्शन के बाद ही आप ये शुरू करते हैं। क्या आप थोड़ा सा टेक्निकली समझा सकते हैं कि एक रोपवे जो होता है ना, मतलब कि जो आम लोगों को समझ आ सके कि एक रोपवे काम कैसे करता है, वो चलता कैसे है, एक जगह से लेके वो नीचे तक जाता है, फिर नीचे से लेके ऊपर तक आता है, और ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है या कौन से हालात हो सकते हैं जिसके कारण वो बीच में रुक भी सकता है? मतलब कि एक अगर आसान से शब्दों में अगर समझाना हो टेक्निकली कि ये काम कैसे करता है। कि एक्चुअली हम लोग का नीचे में, हम लोग ऊपर स्टेशन में आ गए हैं हम लोग, नीचे में हम लोग का इलेक्ट्रिकल मोटर है, गियर बॉक्स लगी हुई है, गियर बॉक्स इट इज़ कंट्रोल बाय द कंट्रोल रूम, पूरा टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक से चल रही है वो सब। और स्पीड हम लोग फिक्स करके रखे, हम लोग इतना स्पीड हम लोग बेसी नहीं चलाएंगे, स्पीड इतना पे से। इनकेस कभी कभी क्या होता है कि सब कोई हैंडीकैप बैठ रहा है, तो उसके लिए हम लोग को रोपवे को स्लो करना पड़ता है। तो हम लोग का यहाँ से ऊपर का स्टेशन से लड़का बोलेगा इतना नंबर कैबिन में हम लोग का ये जा रहे हैं, मतलब हैंडीकैप जा रहे हैं, तो उस जगह पर हम लोग स्लो कर देंगे ताकि वो आराम से उतर सके, ताकि मैंने उसको उतरने में हड़बड़ी ना करना पड़े, आराम से हुआ, हैंडीकैप हुआ, बुजुर्ग आदमी हुआ, प्रेग्नेंट लेडीज़ हुए, वो लोग आराम से उतर सके, हड़बड़ी ना हो, वो देखते हैं। और रहा सवाल अगर इनकेस ड्यू टू एनी रीज़न पावर कट भी होता रहता है, दिस इज़ द कॉमन थिंग, उसके लिए हम लोग के पास जनरेटर रखा हुआ है। हम लोग पावर कट हो जाने के बाद हम लोग अनाउंस करते हैं कि ये पावर कट हो गया, आप घबराइए मत, इट विल टेक 2 से 3 मिनट लगता है, हम लोग को चेंज ओवर करके हम लोग पावर चार्ज कर देते हैं हम लोग। तो मतलब ऐसा कभी हुआ भी है कि यहाँ से ट्रॉलियाँ चल रही हैं तो बीच में पावर कट लग गया और रुक गई? होता है मैडम, ये दैट इज़ कॉमन थिंग, होता है। उसके लिए हम लोग के पास जनरेटर है, तो हम लोग जो मैं चेकिंग बता रहा हूँ, तो हम लोग मॉर्निंग को हम लोग आकर हम लोग
जेंटर को भी चेक करते हैं, मेरा जेंटर स्मूथली ऑन हो रहा है कि नहीं, वन पुश बटन में चालू हो रहा है कि नहीं, वो भी हम लोग देखते हैं हम लोग। दिस इज आवर पार्ट ऑफ द मशीन, वो देखते हैं। कभी कभी क्या हम उसके अलावा पावर कट हो गया तो हम लोग जेंटर हो गया, माँ की कृपा कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर सपोज हम लोग का जेंटर भी फेल कर जाए, उसके लिए हम लोग रेस्क्यू इंजन रखे हैं, सो दैट हम लोग उसको रेस्क्यू इंजन से हम लोग कनेक्ट करके पैसेंजर को सेफली हम लोग उसको उतार सकते हैं। लेकिन ये सारी जो है वो सेफ्टी मतलब कि पहले से आपके पास अरेंजमेंट रहता है Arrangement कि पहले हाँ था। ऑब्वियसली कि खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा अगर हो, जरूरत पड़े तो उसके जरूरत लिए पड़े। सब चीजें हाँ, हैं। लेकिन हम लोग उसको डेली चेकअप करते हैं। हम लोग का रेस्क्यू मशीन हुआ, डीजी सेट हुआ, ईच एंड एवरीथिंग, ऑयल है कि नहीं, ऑयल का लेवल कितना है, डीजी में तेल कितना है, हम लोग सब कुछ चेक करते हैं। जो 1 घंटा का चेकिंग दैट डज नॉट मीन द रोप वे, उसके साथ में कनेक्टिंग जो चीज़ है, सेफ्टी पॉइंट्स, अगर हम लोग का कुछ हुआ है, हम लोग का बीच बीच में बहुत सारा जगह में आपका लिमिट स्विच लगा हुआ है, अगर कुछ हुआ तो लिमिट स्विच काट देगा, क्यों कटा, कितना नंबर कटा, वी कैन इंडिकेट इन द आवर कंट्रोल रूम ऑपरेटर जान जाएगा कि इतना नंबर का टावर का लिमिट स्विच कट गया है। ये सब देख सकते हैं हम लोग। तो रोजाना यहाँ पे रूटीन में कितने लोग जो रोपवे का यूज करते हैं? अप्रॉक्स 250 के आसपास चलते हैं, अप्रॉक्स 250-300 ये चलते हैं। तो आपको, क्योंकि मैंने वैसे आपको पहले भी ये बात की थी कि कल का जैसे इंसिडेंट हुआ है, तो लोगों में आपने कुछ चेंज देखा, कोई डर वगैरह या कोई आके बात कर रहा हो? ऐसा कुछ अभी अभी हम लोग से कोई बातचीत नहीं किया है। नॉर्मल आदमी लोग नॉर्मल जैसे आते हैं, पैसेंजर आते हैं वैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब कि कभी कभी जैसे क्योंकि नवरात्रों में भी यहाँ पे रश होगा, जब मेले लगते हैं तब भी यहाँ पे होता होगा, तो यहाँ पे जब इतने लोग जब आ जाते हैं तो मतलब कि आपको कभी ऐसे रहा होगा कि कभी आपने लोगों को मतलब कहा हो कि जो कंडीशंस हैं वो समझाई हो, हाँ। कैसे शरारतें मत करें कि ये सब वो हो हम सकता लोग है? जब लड़के लोग केबिन में जब केबिन में हम लोग के यात्री बैठते हैं या भक्तजन जो बैठते हैं, जब केबिन में आदमी बैठाते हैं, तो उस समय जो हम चलते बैठाते चलते बात हम लोग जो केबिन में बैठाते हैं, बोला डोर खोलो तो, जो हम लोग केबिन में बैठाते हैं उस समय हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि चलती हुई केबिन में स्थान परिवर्तन ना करे, चलती हुई केबिन में स्मोकिंग ना करे, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है नीचे फेंक देगा। अब देखे जंगल एरिया है, आग लग सकती है, वो सब, छोटे बच्चे खड़े ना हो, वो सब हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखा, हम लोग उसको बोलते भी हैं कि आप लोग ऐसा ऐसा मेंटेन, हम लोग लिखे भी हैं, 2 लैंग्वेज में यूज़ किए हैं, इंग्लिश एंड पंजाबी यूज़ किए हैं, शायद हिंदी भी है, और हम लोग के लड़के लोग बताते भी हैं। आप कितने सालों से यहाँ पे हैं, मतलब इसी काम में? मेरा 8 साल हो गया यहाँ पर। तो क्योंकि आपको टेक्निकली भी इतनी नॉलेज है, तो कल जैसे झारखंड में ये चीज़ हुई है, तो क्योंकि आप इसको बड़ी नज़दीक से समझते हैं, जानते हैं, तो इसके क्या ऐसे हम मतलब लोग रीज़न जो रहते होंगे कि हाँ ऐसा कोई इतना बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता है कि ट्रॉलियाँ अचानक फंस सकती हैं या रोप जो है वो बीच में टूट सकती है या दिक्कत कर सकती है, ऐसे कोई ना कोई सॉलिड रीज़न भी होते होंगे इनके? नहीं मैडम, देखिए एक्चुअली क्या रीजन पड़ा वहाँ पे तो पूरा क्लियर मुझे जानकारी नहीं मिला मेरे को। जैसे हम लोग रोप नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, ये ठीक है कि हाँ वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन एक अगर हम वैसे नॉर्मली किसी रोप वे की बात करते हैं तो बात उसके करते, लिए जैसे हम लोग का रोप का हुआ, हम लोग का ऑथराइज जो गवर्नमेंट से है, हम लोग उसको रोप को चेकिंग करवाते हैं, ईयरली चेकिंग होता है हम लोग का। वो सर्टिफाई करता है कि रोप का माने जैसे हम लोग का बॉडी का एक्सरे होता है उसी तरह रोप का एक एक पार्ट्स का एक्सरे होता है। हम लोग टेक्निकल में आपको समझाना चाहता हूँ, तो उसमें वो लोग सर्टिफाई करते हैं कि हाँ यहाँ कुछ रोप में कुछ डैमेज नहीं है, कुछ क्रैक नहीं है। वो तो कितनी देर बाद ये सब आप चेकिंग करवाते हैं रोप्स की? रोप के लिए देखिए, रोप को हम लोग ईयरली वंस कराते हैं, दैट इज वो लोग देते हैं, 1 साल में हम लोग एक बार चेक कराते हैं, तो ये सफिशिएंट है कि एक साल में एक आध वो लोग बार? करके जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एवरी मंथ हम लोग चेक करते हैं। हम लोग भी यहाँ पर एक एवरी मंथ हम लोग रोप को चेक करते हैं कि रोप के माने माने ऊपर से देखते हैं कि कहीं पर क्रैक हुआ नहीं है, कहीं पर डैमेज का दाग दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। इवन जो कैरियर्स का एक एक पार्ट्स का बॉडी भी हम लोग चेक कराते हैं। उसके बाद PWD आते हैं, वो लोग भी अपना मैकेनिकल टीम आते हैं शिमला से, वो लोग भी वो लोग अपना चेकिंग करते हैं। देन दे आर आफ्टर दैट दे आर गिविंग द सर्टिफाइड टू रन द ऑपरेशन। कभी इतने सालों में ऐसे हुआ हो कि कोई अचानक ऐसा क्राइसिस हुआ नहीं हो कि उसको हैंडल करना? नहीं, माँ का कृपा से ऐसे कभी हुआ नहीं है। नहीं, होना भी नहीं चाहिए वही कि वही बोल रहे बिल्कुल बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते जाते हैं या रोपवे का यूज़ करते हैं बड़े विश्वास से आते हैं, बिल्कुल, तो उसकी मेंटेनेंस भी उतनी उसी तरीके से होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। हम लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, कैरियर्स का मेंटेनेंस, ईच एंड एवरी पार्ट्स का मेंटेनेंस, रनिंग
कल मॉर्निंग चेकअप करने के बाद 2-3 घंटे में हर घंटे में उसको रनिंग करके देख लेना। एक केबिन में आइडल आदमी बैठ कर जाएगा, कहीं पर आवाज़ मिल रही है कि नहीं, कहीं पर आवाज़ मिल रही है। अगर हम लोग लगा कि नहीं यहाँ पर आवाज़ है कि ड्यू टू सम रीजन, हम लोग उसी समय ऑपरेशन बंद कर देंगे। उसी समय फिर ऑपरेशन बंद करके मैंने पैसेंजर को मैंने दोनों साइड का लाइन खाली कर देंगे। उसमें दरकार पड़ा तो हम लोग उस समय ही मेंटेनेंस करेंगे। विल नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट डे। ऐसा लगा कि हमको करना है तो करना है उसी समय। विल नॉट टेक द रिस्क। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਬਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਭੈਰੋ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਪਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਰੋਪ ਟੁੱਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫਸ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਪਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਪਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਪਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ दैनिक सवेरा टीवी ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੂਚੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।